খুৰা কেলেংকাৰী দিল্লীৰ উপ মুখ্যমন্ত্ৰীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে ইতিমধ্যে CBI সেই খবৰ আমি জনাই আহিছো আজি আদালতত হাজিৰ কৰা হ'ব মনীষ সিসোদিয়াক আৰু সিসোদিয়াৰ গ্ৰেপ্তাৰৰ বিৰুদ্ধে আজি আপৰ বৃহৎ প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰা হ'ব বিজেপি কাৰ্যালয় ঘেৰাও কৰিব আপৰ নেতা কৰ্মীয়ে দুপৰীয়া 12 বজাৰ পিছতে আৰম্ভ হ'ব আপৰ প্ৰতিবাদ আৰু 8 ঘণ্টাৰ জেৰাৰ অন্তত কালি CBI গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল মনীষ সিসোদিয়াক আৰু সিসোদিয়াৰ গ্ৰেপ্তাৰক লৈ এতিয়া সমগ্ৰ ৰাজনীতি তুলপাৰ হৈছে দেশৰ ৰাজনীতি এতিয়া তুলপাৰ হৈ পৰা পৰিলক্ষিত হৈছে আপৰ নেতাকৰ্মীসকলে তীব্ৰ গৰিহণা দিছে মনীষ সিসোদিয়াক গ্ৰেপ্তাৰৰ এই ঘটনাক আৰু এয়া মোদী চৰকাৰৰ স্বেচ্ছাচাৰী একনায়কত্ববাদী শাসন বুলি অভিহিত কৰিছে মন্তব্য কৰিছে তেনেধৰণে আৰু এই ঘটনাক লৈ এতিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে দেশৰ ৰাজনীতি তুলপাৰ হৈ পৰিছে কালি 8 ঘণ্টা জেৰা কৰিছিল মনীষ সিসোদিয়াক আৰু 8 ঘণ্টাৰ জেৰাৰ অন্তত গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হল উপ মুখ্যমন্ত্ৰী মনীষ সিসোদিয়াক 11 বজাৰ পৰা জেৰা কৰা হৈছিল আৰু সন্ধিয়া 7 বজাত মনীষ সিসোদিয়াক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে উল্লেখযোগ্য যে মনীষ সিসোদিয়াই জেৰা কৰাৰ পূৰ্বে মনীষ সিসোদিয়াই যেহেতু কৈ গৈছিল যে তেওঁ 8-9 মাহলৈ তেওঁ উভতি আহিব নোৱাৰিব ঘৰলৈ তেওঁৰ যেটো অসুস্থ পত্নী আছে সেই কথা কৈ থৈ গৈছিল ইয়াৰ পূৰ্বে যেহেতু মুখ্যমন্ত্ৰী অৰবিন্দ কেজৰিৱালেও আশংকা প্ৰকাশ কৰিছিল যে মনীষ সিসোদিয়াক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হ'ব পাৰে গতিকে আৰু সেয়াই যেহেতু সত্যত অৱশেষত পৰিণত হৈছে কালি 8 ঘণ্টা জেৰাৰ অন্তত যেহেতু মনীষ সিসোদিয়াক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে কিন্তু আজিৰ দিনটো দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আপৰ নেতাকৰ্মীসকলে তীব্ৰ প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী তেওঁলোকে গ্ৰহণ কৰিব বিজেপি কাৰ্যালয় ঘেৰা কৰিব বুলি জানিব পৰা গৈছে আৰু দুপৰীয়া 12 বজাৰ পৰা সেই প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী আৰম্ভ কৰিব আপে এই মুহূৰ্তত কেনে ধৰণৰ পৰিৱেশ পৰিস্থিতি সেয়া আমি জানিবৰ বাবে পোনপটীয়াকৈ দিল্লীলৈ লৈ যাব বিচাৰিছো আমাৰ সাংবাদিক মনীষ সিসোদিয়া মনীষ শুক্লা উপস্থিত আছে মনীষ শুক্লা আমি পোনপটীয়াকৈ আপোনাৰ কাষলৈ গৈছো কালি 8 ঘণ্টা জেৰাৰ অন্তত অৱশেষত যেহেতু মনীষ সিসোদিয়াক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে তাৰ পাছত আজিৰ পৰিৱেশ নতুন দিল্লীৰ কেনেকুৱা পৰিস্থিতি কেনেকুৱা আজি যেহেতু আপে প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী 12 বজাৰ লগে লগে গ্ৰহণ কৰাৰ কথা আছে গতিকে এই মুহূৰ্তৰ শেহতীয়া পৰিস্থিতিৰ বিষয়ে আমি জানিব বিচাৰিম मनीष शुक्ला देखिए बिल्कुल निश्चित तौर पे जिस तरह दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को CBI ने कल 8 घंटे की पूछताछ के बाद जो गिरफ्तार किया है उसके बाद आम आदमी पार्टी ने इसको लोकतंत्र के ऊपर हमला बताया है और आम आदमी पार्टी ने कल ही ये ऐलान कर दिया था कि आज दिल्ली में इस गिरफ्तारी के विरोध में आम आदमी पार्टी पूरे दिल्ली में और उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में विरोध प्रदर्शन करेगी और एहतियात के तौर पर अगर हम बात करें तो आज CBI मुख्यालय के आसपास बैरिकेडिंग कर दी गई है कल ही से सुरक्षा वहां बढ़ा दी गई थी और जब मनीष सिसोदिया को पूछताछ के लिए कल बुलाया गया था उसके पहले ही वहां धारा 144 लगा दी गई थी और जब CBI ने मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया था चूंकि वो CBI मुख्यालय में ही उनको रखना था रात भर तो इसलिए RAF की टीम को भी वहां पर भेज दिया था ताकि कोई भी पॉलिटिकल प्रोटेस्ट वहां पर CBI मुख्यालय में ना हो सके और अगर आज की तैयारियों की बात करें तो आज चाहे वो दिल्ली बीजेपी मुख्यालय हो या CBI मुख्यालय हो वहाँ आसपास की जो सुरक्षा व्यवस्था है वो बढ़ा दी गई है क्योंकि आम आदमी पार्टी आज 12 बजे के आसपास विरोध प्रदर्शन करेगी तमाम जगहों पे चाहे वो बीजेपी मुख्यालय हो या CBI मुख्यालय हो उसके सामने विरोध प्रदर्शन करेगी साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में आम आदमी पार्टी विरोध प्रदर्शन का कार्यक्रम रखेगी और साथ ही साथ जिस तरह गिरफ्तारी के बाद 24 घंटे के अंदर जो कोर्ट में पेशी करनी होती है तो इसी उसके तहत मनीष सिसोदिया को आज CBI तकरीबन 3 बजे कोर्ट में पेश करेगी वहाँ ये मांग करेगी जज के सामने कि जो ज़्यादा से ज़्यादा अवधि है रिमांड उनको दी जाए तो अब देखना है इस पूरे मामले पर CBI कितने दिनों की रिमांड मांगती है और जो सूत्र हैं हमें वो ये बता रहे हैं कि अब से कुछ देर बाद मनीष सिसोदिया का मेडिकल कराया जाएगा और मेडिकल कराने के लिए मनीष सिसोदिया को अस्पताल CBI इस तरह का विचार कर रही है अस्पताल ना ले जाया जाए बल्कि सरकारी जो डॉक्टर हैं उनको CBI मुख्यालय बुलाया जाए चूँकि सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए उनका जो मेडिकल है वो CBI मुख्यालय में ही करा लिया जाएगा उसके बाद उनको राउज एवेन्यू कोर्ट जो है वहाँ पे पेश किया जाएगा जिस तरह के सूत्र जो CBI है वो बता रहे हैं तकरीबन दोपहर के बाद तकरीबन 3 बजे उनकी पेशी की जाएगी और CBI उनकी रिमांड की बात करेगी और इस पूरी गिरफ्तारी के बाद निश्चित तौर पर जिस तरह आम आदमी पार्टी ने विरोध प्रदर्शन किया है सीधे सीधे बीजेपी पर हमला बोला है और साथ साथ बीजेपी ने कहा है कि चूंकि इस पूरे मामले पर जो नई शराब नीति है उस पूरे मामले पर जो घोटाला हुआ है उसमें कहीं ना कहीं जो मनीष सिसोदिया हैं उनके ऊपर इस तरह के आरोप लगे हैं कि उनकी भूमिका रही है और अगर CBI की बात करें तो कल जो CBI ने जो पूछताछ की थी मनीष सिसोदिया कई सवालों का जवाब नहीं दे रहे थे और जो जवाब दे रहे थे वो कुछ इस तरह के थे कि अगर उनसे पूछा जा रहा था शराब
शराब नीति के घोटाले के बारे में, तो वो उन्होंने उनकी सरकार ने जो दिल्ली में शिक्षा नीति पर काम किया है तो उसके बारे में जवाब दे रहे थे। तो सीबीआई अधिकारियों ने साफ तौर पर यह कहा था कि आपसे नई शराब नीति के पॉलिसी के बारे में पूछा जा रहा है तो आप शिक्षा के बारे में क्यों बात कर रहे हैं। और कई डिजिटल एविडेंस थे जो अन्य गवाहों के आधार पर सीबीआई को मिले थे, उसके जो काउंटर स्टेटमेंट उसको लेकर रिकॉर्ड करना चाह रही थी सीबीआई, उसको लेकर मनीष सिसोदिया से जो सवाल किए थे उसके जवाब मनीष सिसोदिया नहीं दे पाए थे और जांच में सहयोग नहीं कर रहे थे, ऐसा सीबीआई ने कहा और यही कारण बने थे कि मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया गया। और अब इसको लेकर आज गहमा-गहमी है और दिल्ली में राजनीतिक पारा जो है वो बढ़ा हुआ है और कह सकते हैं कि तकरीबन 3 बजे, जैसा कि मैंने पहले बताया कि 3 बजे तकरीबन मनीष सिसोदिया को कोर्ट में पेश किया जाएगा और सीबीआई एक तकरीबन ज़्यादा से ज़्यादा अवधि के लिए मनीष सिसोदिया की रिमांड मांगेगी। जी হয় মনীষ শুক্লা, যেহেতু আজি আপৰ যিসকল নেতাকৰ্মী তেওঁলোকে প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী 12 বজাৰ লগে লগে গ্ৰহণ কৰিব বুলি জানিব পৰা গৈছে, গতিকে সেই প্ৰতিবাদ তেওঁলোকে দিল্লীৰ ক'ত আৰম্ভ কৰিব, কেনেধৰণে আৰম্ভ কৰিব, কিমান লোক ওলাই অহাৰ সম্ভাৱনা আছে মনীষ শুক্লা? देखिए, बिल्कुल जैसा कि मैंने पहले बताया कि जो आम आदमी पार्टी विरोध प्रदर्शन करेगी, सीबीआई मुख्यालय के बाहर भी कार्यक्रम एक तैयारी की जा रही है, जैसा कि आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं उनके सूत्रों के मुताबिक। लेकिन सीबीआई मुख्यालय के बाहर जो आसपास का इलाका है वहाँ पे बैरिकेडिंग की गई है, तमाम काफ़ी बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। आरएएफ की टीम कल से ही वहाँ पे तैनात की गई है ताकि कोई भी विरोध प्रदर्शन सीबीआई मुख्यालय के सामने ना हो पाए। तो आम आदमी पार्टी जो है वो चाहे वो सीबीआई मुख्यालय हो, बीजेपी का जो दीनदयाल उपाध्याय पर बीजेपी मुख्यालय है उसके सामने विरोध प्रदर्शन करेगी। लेकिन दिल्ली पुलिस ने और जो आरएएफ है उसने पूरी तैयारी करके रखी है कि जो ये विरोध प्रदर्शन होंगे उसको लेकर बैरिकेडिंग करके रखी है और आसपास की जो सीबीआई मुख्यालय आने वाली जो रोड है या बीजेपी मुख्यालय आने वाली रोड है उसमें तमाम जो बैरिकेडिंग की गई है। और ये देखा जा रहा है कि जो अगर विरोध ऐसा लग रहा है कि कोई संदिग्ध व्यक्ति मिल रहे हैं जो विरोध प्रदर्शन करने के लिए वहां पहुंच सकते हैं तो उनसे पूछताछ की जा रही है। तो कह सकते हैं इस पूरे मामले पर एक और आम आदमी पार्टी जहां बड़े स्तर पर विरोध प्रदर्शन करने की तैयारी में है, तकरीबन 12 बजे से ये विरोध प्रदर्शन शुरू हो जाएगा आम आदमी पार्टी का। वहीं दूसरी ओर चाहे वो दिल्ली पुलिस हो और तमाम जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो इस पूरे मामले पर नज़र बनाए हुए हैं कि आखिर कहां इस मामले में विरोध प्रदर्शन हो सकता है और सभी जो इसको लेकर तैयारियां हैं वो दिल्ली पुलिस ने की हुई हैं एहतियात के तौर पर। जी तो मनीष शुक्ला, আপুনি শেহতীয়া আৰু পৰিস্থিতিৰ বিষয়ে আপুনি জনাইছে, পোনপটীয়াকৈ নতুন দিল্লীৰ পৰা আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছো। আৰু অৱশেষত যেহেতু মনীষ সিসোদিয়াক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে, কালি দিনৰ 11 বজাৰ পৰা জেৰা কৰিছিল চিবিআই আৰু জেৰাৰ অন্তত প্ৰায় 8 ঘণ্টা জেৰা কৰাৰ অন্তত সন্ধিয়া 7 বজাত গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে মনীষ সিসোদিয়াক আৰু তেওঁ গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ লগে লগে সমগ্ৰ দেশৰ ৰাজনীতিত এতিয়া তুলপাৰ লগা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আৰু আজিৰ আপৰ হাজাৰ হাজাৰ নেতাকৰ্মী ওলাই আহিব, প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী পালন কৰিব 12 বজাৰ লগে লগে। কিন্তু সেই প্ৰতিবাদকো যেহেতু সেই প্ৰতিবাদ কেনেকৈ আসলতে প্ৰতিহত কৰে তাৰ বাবে সম্পূৰ্ণৰূপে সাজু হৈ আছে, কিন্তু দিল্লীৰ আৰক্ষী প্ৰশাসনো সেই প্ৰতিবাদ প্ৰতিহত কৰিবৰ বাবে এই মুহূৰ্তত আমি সেই খবৰ আপোনালোকক জনাইছো। আৰু বিয়লি 3 বজাৰ লগে লগে আদালতত হাজিৰ কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে মনীষ সিসোদিয়াক। এই শেহতীয়া তথ্যখিনি আমাক জনালে মনীষ শুক্লাই। পৰৱৰ্তী খবৰ।